کیا تھا. ایک بہت امپورٹنٹ تھا, آپ سب کے ساتھ شیئر کیا, جو کہ تقریباً 30 منٹ کے آس پاس تھا. اس کے بعد ہم نے ایک کوئک جو ویو تھا ٹیکنیکلی, وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور ابھی رات کو جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی اسٹڈی کچھ میں نے کی, اور ایشین مارکیٹس, فیوچر کی, کموڈیٹیز کی, اور یو ایس نے جو سینکشنز لگائے ہیں کچھ ایران پہ, اس کا امپیکٹ پہ, ان کا انٹرسٹ ریٹ کا ہائی ہونا, تو انٹرنیشنل مارکیٹ پہ بھی جو, اور وہ پھر ہماری مارکیٹ. تو ان سب کی اسٹڈی کے بعد یہ میں اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ گراف دیکھ کے اور اس کی آر ایس آئی, میک ڈی, اور جو بھی موونگ ایوریجز, ایکسپونینشیل موونگ ایوریجز, یہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ اس کی امپورٹنس ہے, لیکن اس کی کمبینیشن ہوتی ہے باقی مارکیٹس کے پاس بھی, اور ایک سائیکولوجیکل فیکٹر ہوتا ہے, اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اب ہماری مارکیٹ پہ اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. تو اس لیے سم ٹائم جیسے ابھی رات کے تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 1:30 بجے کے آس پاس, تو یہ میسج بھی آخر میں اس لیے آپ لوگوں کو میں سینڈ کر دیتا ہوں. ان سب پہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ویڈیو, ایک میسج جو میں آپ لوگوں کو بھیجتا ہوں, دیکھنے میں تو وہ 3 منٹ کی ہوتی ہے, لیکن اس کے پیچھے 4-5 گھنٹے کی ورکنگ ہوتی ہے. اسی طرح اگر اس کے زیادہ میسج ہو تو اس میں اور زیادہ پھر محنت ہوئی ہوتی ہے. تو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بہت ہوتی ہے اس کیئر کے. اور دوسرا جو یوٹیوب پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کی بھی وجہ یہ کہ جو واٹس ایپ پہ ہے وہ اتنا ہیوی ڈیٹا جو ہے وہ پھر آپ لوگوں تک ویسے پہنچ نہیں پاتا. تو اس لیے یوٹیوب کا سہارا لے کے کہ وہاں پہ ایک لنک کے تھرو اور ایک پوری ہسٹری جو چینل کے مطابق جو ہوتے ہیں, تو یہ ایک بہت بہترین یوٹیوب پہ ایک فیسلٹی ہے کہ آپ وہ ایک ہسٹری بھی چلی آ رہی ہوتی ہے, اور جتنے بھی آپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ 1 بائی 1 وہ پڑے ہی رہتے ہیں. اور جب بھی ہمارے کلائنٹس اس کو ویو کرنا چاہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو سمجھنا چاہیں, تو کسی بھی ٹائم اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم اپنے, اور یہ میں نہیں کہتا کہ جی میری ویڈیو کو آپ لائک کریں یا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں. جو میرے ساتھ کلائنٹس ہیں جو چلے آ رہے ہیں اس کو بہتر لگتا ہے تو اس کو بے شک سبسکرائب کریں, اچھا لگتا ہے لائک کریں, نہ لائک کریں. اس سے نہیں کہ پیسے یوٹیوب سے کوئی پیسے کمانے ہیں, یا جب میں آپ لوگوں سے کوئی 1 روپے تک ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ جی مجھے منتھلی آپ فیس دیں گے یا کچھ, تو باقی چیزیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو رزق کسی کے مقدر میں جو لکھا ہوتا ہے تو وہ غیب سے آپ کو وہ عطا کرتے ہیں. جو آپ حقوق العباد سمجھ کے لوگوں کے کیئر کرتے ہیں آپ سب بھی, تو وہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے بنا کے وہ رستے خود بخود کھولتے ہیں. تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ جی میں کوئی بھی آپ لوگوں کے ساتھ جو الرٹ شیئر کرتا ہوں تو اس میں کوئی میرا اپنا ذاتی کوئی مفاد ہے, یا میری کوئی کمپنی کا کوئی مفاد ہو جہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. تو یہ بالکل صحیح, یہ ٹوٹلی آپ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں, اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو. تو اس میں کہاں تک میں کامیاب ہوتا ہوں وہ آپ لوگ بہتر اس کو انالائز کر سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. تو ہم مارکیٹ کی طرف واپس آتے ہیں. تو ایک جو 44,400 کے لیول پہ تقریباً جو میں نے آپ لوگوں کو اوور آل سیلنگ کروائی تھی, تو 44,400 300 کے لیول پہ, تو وہ تقریباً 9 مئی کے آس پاس. اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم کہیں پہ بھی ہم نے ایسا اتنی بائنگ نہیں. 1 جون سے لے کے وہ ڈیٹا بھی جو واٹس ایپ کا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں, اس میں آپ لوگ دیکھ لیں گے. تو ہم KC 100 انڈیکس پہ, یہ ڈیلی کا ایک چارٹ ہے جو کینڈل سٹک ہے. آج کی کلوزنگ ہوئی ہے 41,730 پہ, اور آج کا جو ٹرن اوور تھا وہ 73 ملین کا تھا, 7 کروڑ 30 لاکھ کے آس کا. کل کے دن میں ہم ذرا دیکھیں گے اس کو کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ لیول ہے وہ 42,000 اور 42,150 کے آس پاس ہے, جو اس سے پہلے دن میں بھی میں نے ذکر کیا تھا.
इसमें रियल टाइम में मैं वॉच करूँगा। अगर आप लोगों को कोई मैं अलर्ट भेजूँ, ये जो इंडिविजुअल स्टॉक के हवाले से भी अभी जो शेयर करूँगा मैं आप लोगों के साथ, उसमें फिर उसी हिसाब से डिसीजन लेने। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कल के दिन में थोड़ा बहुत आप लोग मार्केट को टाइम दो, जो आप लोगों की होल्डिंग्स हैं। पहले सेशन जो है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ख़ास तौर पे 11 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान। वो हमें वॉच करना पड़ेगा कि आईआईए 42 और 41 42 अब 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 साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट आ सकता है सेकंड सेशन में, तो उसको फिर काइंडली आप लोग फॉलो करेंगे, क्योंकि इस जोन से कल के दिन में जो इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह मैंने देखी हैं, तो हमारी अपनी मार्केट को कल के दिन में 42 150 से ऊपर ट्रेड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तब कहीं जाके हम नेक्स्ट वीक का जो डिस्कस हो चुका है आप लोगों के साथ 43,000 के आसपास फिर हम इंशाल्लाह जा पाएंगे, तो इसको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अब जैसे अगर ये तकरीबन जो फर्स्ट जून से अगर ये देखें, तो ये जैसे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप किए हैं कि बाइंग से जो है ना वो गुरेज करें, और अगले दिन की भी जो है ना फिर स्ट्रेटजी फिर इसके साथ ये जो आप लोगों के साथ फर्स्ट जून को ही शेयर किया गया था कि रेंज बाउंड मार्केट है 42,900 और 43,700, तो रियल टाइम में फॉलो कर सकते हैं। ये था एक मैसेज। फिर अगर हम ये देखें ना 2 जून के साथ फिर मुख्तलिफ शेयर किए गए, यहाँ पे देखें आप लोगों को कहा गया है कि जी बाइंग से गुरेज करें। फिर इसके अलावा यहाँ से भी नीचे यही कहा गया है। फिर मुख्तलिफ जो न्यूज़ वगैरह बीच में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर तो मेरी नज़र होती है, इसलिए अक्सर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये देखें, जब अब वहाँ पे यानी 42,700 के आसपास अब 41,550 पे भी आके यहाँ पे भी कहा गया आपको 3 जून को कि बाइंग से गुरेज करें। फिर अगर हम नीचे चले जाते हैं 4 जून को, तो यहाँ पे भी एक मैसेज भी आप लोगों के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सनाउल मरवत आप सुन। पिछले हफ्ते हमने मार्केट में सेलिंग देखी और जुम्मे को भी हफ्ते का अख्तिताम सेलिंग के साथ ही हुआ। तो ये भी एक मैसेज आपको किया गया था कि जी क्या पिछला जो है ना ये आप सुन सकते हैं दोबारा भी ना कि क्या कहा गया है। इसके बाद 6 जून को फिर यहाँ पे बाइंग जो है कि आप लोगों को कहा है कि रियल टाइम में आप लोग तो जीजीएल जो है आप लोगों को कहा है कि जी 16 रुपये 70 पैसे पे, और उसमें मज़ीद ऐड करें अगर 16-20 एजीएल के हवाले से 5 ये और 6 के दरमियान अगर ये 6 क्रॉस करता है तो मज़ीद आप ऐड करें। तो वो जो ये मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की नज़र पड़े और आप लोगों ने जो बाइंग की है तो उसको जो कल के हवाले से यानी कल जुमे को मैं बात कर रहा हूँ 17 जून की ना, तो ये 17 जून को कल की सुबह की बात हो रही है कि उस पे इन स्टॉक पे जो भी मैं इंडेक्स के साथ कहूँ या इंडिविजुअल कहूँ तो उसको लाजमी फिर फॉलो करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल सुबह 11 से 12 के दरमियान भी आप लोगों ने टाइम देना है, स्क्रीन के सामने रहें, और सेकंड सेशन में भी आप लोगों ने रहना। बीच में फिर मैसेज भी मैं इंशाल्लाह कुछ करूँगा आपको। फिर टीपीएल के हवाले से, पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से, फिर दोबारा से एटीआरएल, और ये फिर उसकी एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ ये शेयर की जा चुकी है 17 जून के हवाले से। तो ये फिर लिखा गया है कि यू कैन प्लेस प्रॉफिट टेकिंग ऑर्डर्स फॉर द अबाउ स्टॉक, ये रात को आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। फिर ये भी कहा गया है कि अगर बीच में कोई चेंजेस आएंगी दिन में तो वो लॉट केमिकल के हवाले से बात हुई है। साथ साथ सपोर्ट 41,300 का सपोर्ट, ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी हैं। फिर ये कौन सी डेट को आप लोगों के साथ ये कहा गया 8
जून को तो ये कहा गया था, और 8 जून को ही आप लोगों के यूनिटी, लकी, फ्लाइंग, मैपल लीफ, टीपीएलपी, मोगल, पेल, एवियन, ऑक्टोपस, डीजीएल, एपीएल, एटीआरएल, टेली सिस्टम, ये सब कि जी ये करंट रेट पे जो है वो आप लोग बाय कर सकते हो। फिर उसके बाद ये स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की जा चुकी है। फिर इसी हवाले से मुग़ल, आगा, एवियन, ऑक्टोपस, फिर फिरोज, सर, वो काफ़ी अच्छे रेट्स पे थे उस वक्त जो आप लोगों की बाइंग हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी प्रॉफिट में आप लोगों के हैं। इस ये जितनी भी ये स्टॉक्स अभी आप लोग, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 1 जून से लेके कुछ जो मिड तक फिर हमने बाइंग नहीं की, बीच में जो ये बाइंग चली आ रही है, तो इसमें कहीं पर भी आई थिंक आप लोगों को सेलिंग का एज सच नहीं कहा गया। ये बीच में जो है वो फिर एक मैसेज वगैरह जो आपको अस्सलाम कर दे। वालेकुम, सनाउल मरवत आपसे मुखातिब हूँ। अभी जो आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की है फेटफ के हवाले से, तो हाँ, तो ये सुनिए ना। 17 तारीख को के आसपास अगर कोई अनाउंसमेंट आ जाती है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जो है वो निकल गया, हाँ, अब जैसे ये कल का दिन जो है, कल तक जो है ये मीटिंग 14 से लेके 17 तक, तो कल है, तो कल वैसे भी इम्पोर्टेंट दिन है इस हवाले से। इसके अलावा ये सब जो है, अब ये कल के दिन और ये पूरा कंप्लीट तकरीबन अब हो गया। आज के दिन में भी फ्लाइंग और डीसीएल पर बाइंग रिकमेंड की थी, और इसी तरह क्लोजिंग के वक्त ये भी आप लोगों के साथ 4:18 पे, और अब ये मैसेज आप लोगों के साथ। वापस चलते हैं ग्राफ की तरफ भी। तो मैं ये बता रहा था कि ये लेवल जो है वो अब इम्पॉर्टेंट है, 42,000, 42,150। अगर ये लेवल हम क्रॉस कर, जिस तरह क्लोजिंग हुई है कदर वॉल्यूम भी, तो ये कल के दिन में आसानी से 42 और 41, 42,150 के दरमियान मार्केट, उम्मीद यही है कि पहले सेशन में भी आ जाएगी, और उसकी फिर क्लोजिंग और बीच में वॉल्यूम और उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर बाकी सेक्टर्स के हवाले से, उसी को सामने रियल टाइम में जैसे जैसे मैं उसकी स्टडी करता जाऊंगा, तो वो बहुत रिटन फॉर्म में आप लोगों को व्हाट्सएप करता रहूँगा। तो उसी व्हाट्सएप को फिर आप लोगों ने फॉलो करना है, और जब फिर कल की क्लोजिंग हो जाएगी हफ्ते की, जुमे को अगला रोल ओवर वीक जैसे बता चुका हूँ कई दफ़ा, फिर संडे की नाइट तक कंप्लीट वीकली स्ट्रेटेजी भी आप लोगों के साथ इंडेक्स वाइज और इंडिविजुअल स्टॉक्स की शेयर की जाएगी, और मंडी की स्ट्रेटेजी भी फिर आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही तो इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह। तो जो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चलेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा, और आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, और इंशाल्लाह इस बिज़नेस को आप लोग फिर बेहतर भी पाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।